داستان ہے مغلیہ سلطنت کے تیسرے بادشاہ جلال الدین محمد اکبر کی۔ کم سنی میں ہی کیسے اکبر پر موت کے سائے منڈلانے لگے، دلی کا تخت کیسے حاصل کیا اور وہ کیسے اکبر سے اکبر اعظم بنا۔ میں ہوں اویس سعید اور ہسٹری موڈ کی مغل امپائر سیریز کے اس حصے میں یہی سب کچھ آپ کو بتائیں گے۔ چونسا اور کنوج کی جنگوں میں شیر شاہ سوری کے ہاتھوں عبرتناک شکست کے بعد ہمایوں ہندوستان کی سلطنت گنوا بیٹھا تھا اور جان بچاتا سندھ کی طرف بھاگ چکا تھا، جہاں اس کی شادی حمیدہ بانو بیگم سے ہوئی تھی۔ 15 اکتوبر 1542 میں عمر کوٹ کے مقام پر راجپوت قلعے میں اکبر نے آنکھ کھولی، جہاں اس کے والدین کو مقامی ہندو حکمران رانا پرساد نے پناہ دی ہوئی تھی۔ اس وقت بادشاہ ہمایوں کے پاس سوائے خوشبو کے کچھ بھی موجود نہ تھا جو وہ ساتھیوں میں تقسیم کرتا۔ اس صورتحال میں بادشاہ ہمایوں نے اکبر کو اپنے بھائی کامران مرزا، جو کہ زیادہ قابل اعتبار اور بھروسہ مند نہ تھا، پھر بھی اس کے پاس کابل بھیج دیا، جہاں اس کی بیوی نے اکبر کی پرورش کی اور خود اپنے ساتھیوں سمیت ایران چلا گیا۔ پھر ہوا یوں کہ کچھ ہی عرصے بعد جب بادشاہ ہمایوں کے بھائیوں نے بغاوت کر دی تو وہ ایرانی فوج کے ساتھ کابل روانہ ہوا۔ ہمایوں جب فوج کے ساتھ کابل پہنچا تو کامران نے کم سن اکبر کو قلعے کی چھت پر آگ جلا کر اس کے ساتھ باندھ دیا تاکہ ہمایوں کو حملے سے روک سکے، مگر ہمایوں نے مزید شدت سے حملہ بھی کیا اور اکبر کو آزاد بھی کروایا۔ اس کے بعد 1555 میں ہمایوں نے دلی پر دوبارہ قبضہ کیا تو اس وقت اکبر پنجاب کے مشہور ثقافتی علاقے کلانور میں موجود تھا۔ ابھی مغل سلطنت صحیح طریقے سے مستحکم بھی نہ ہوئی تھی کہ ہمایوں کا اچانک انتقال ہو گیا۔ کسی بھی قسم کی بغاوت سے بچنے کے لیے بادشاہ کے وفادار کمانڈر اور وزیر بیرم خان نے وہیں کلانور میں ایک چبوترا بنوایا اور شاہی تقریب منعقد کی اور اکبر کے بادشاہ بننے کا اعلان کیا اور اسے شہنشاہ قرار دیا۔ بیرم خان خود اکبر کا سرپرست اور وزیر اعظم بن گیا۔ دوسری طرف ہندوستان کی مشرق ریاست پر ابھی بھی سوری حکومت قائم تھی۔ ان کو جب بادشاہ ہمایوں کی موت کی خبر ملی تو ان کے وزیر اور ہندو کمانڈر ہیمو نے آگرہ کی طرف چڑھائی کر دی۔ ہیمو آندھی اور طوفان کی طرح آیا اور آگرہ پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد وہ دلی کی طرف بڑھا۔ دلی میں اس وقت مغل گورنر تردی بیگ موجود تھا، جس نے اکبر اور بیرم خان کو خطوط لکھے اور ہیمو کے حملے کی اطلاع دی۔ تردی بیگ نے آس پاس کے تمام مغل امراء کو بھی اکٹھا کیا۔ دلی کے پاس تغلق آباد میں دونوں فوجیں آمنے سامنے آئیں۔ ہیمو کے پاس ایک بڑی فوج تھی، جس کی وجہ سے مغل فوج معمولی مزاحمت کے بعد بھاگ کھڑی ہوئی اور ہیمو نے آگرہ کے بعد دلی پر بھی قبضہ کر لیا۔ دلی کی فتح کے بعد ہیمو نے اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا اور اپنے لیے وکرمادتیہ کے لقب کا استعمال کیا، جو ہندوستان کے قدیم ہندو راجا اور بادشاہ اپنے لیے استعمال کرتے تھے۔ پھر ہوا یوں کہ اکبر نے اپنے وزیر علی قلی خان کو 10,000 گھڑ سواروں کے ساتھ تردی بیگ کی مدد کے لیے بھیجا ہوا تھا۔ جب وہ پہنچا اس وقت تک جنگ کا فیصلہ تو ہو چکا تھا، مگر ہیمو کا توپ خانہ جو ابھی بھی صرف چند محافظوں کے ساتھ منتقل کیا جا رہا تھا پر علی قلی خان نے قبضہ کر لیا اور اپنے ساتھ لے آئے۔ تغلق آباد سے تباہ کن خبر سنتے ہی اکبر اور بیرم خان فوراً دلی کی طرف ایک فوج لے کر روانہ ہوئے اور ایک مرتبہ پھر 5 نومبر 1556 کو دونوں فوجیں پانی پت کے تاریخی میدان میں آمنے سامنے آئیں، جہاں بابر نے ابراہیم لودھی کو شکست دی تھی۔ ہیمو کی 30,000 کی بڑی فوج کے مقابلے میں 13 سالہ اکبر صرف 10,000 کی فوج کے ساتھ میدان میں اترا۔ ہیمو کی افغان فوج نے تابڑتوڑ حملے کیے، جس سے اکبر کی فوج پیچھے ہٹنے لگی۔ مغل فوج جنگ میں ایک عبرتناک شکست کھا رہی تھی کہ اچانک ایک اڑتا ہوا تیر ہیمو کی آنکھ میں لگا، جس سے وہ بے ہوش ہو کر گر گیا، جس سے ہیمو کی فوج میں ایک بھگدڑ مچ گئی اور وہ واپس بھاگنے لگے۔ اس کے نتیجے میں اکبر کی فوج نے ایک ہاری ہوئی جنگ بآسانی جیت لی۔ مغل فوج نے ہیمو کو زندہ گرفتار کیا اور اکبر کے سامنے پیش کیا۔ بیرم خان نے اس کا سر قلم کیا اور دلی کے دروازے پر اس کی لاش کو لٹکا دیا۔ اس جنگ کے بعد دلی اور آگرہ پر ایک مرتبہ پھر مغلوں کا قبضہ ہو گیا اور ہندوستان پر اکبر کی بادشاہت قائم ہو گئی۔
अगले कुछ ही महीनों में अकबर और बैरम खान ने लाहौर और मुल्तान पर भी कब्जा कर लिया। 1558 में अजमेर और ग्वालियर भी अकबर के कंट्रोल में आ गए। अगले साल अकबर ने राजपुताना और मालवा में भी मुहिम का आगाज कर दिया, मगर इस दौरान उसका अपना वजीर बैरम खान ही अकबर के लिए मुश्किल बन गया। बैरम खान एक सरपरस्त के तौर पर खुद निज़ाम हुकूमत चला रहा था और मर्जी के फैसले कर रहा था। उसने दिल्ली के गवर्नर तरदी बेग और दूसरे उमरा को कत्ल तक करवा दिया, जिससे दरबार के दीगर उमरा और बिलखसूस अकबर की रज़ाई माँ महामंगा उसके शदीद मुखालिफ हो गए। 1560 में एक के बाद एक तनाज़ात की वजह से अकबर ने बैरम खान को बरतरफ कर दिया और जबरी हज पर भेज दिया। बैरम खान की बरतरफी के बाद अकबर ने चुन चुन कर नहायत काबिल लोगों को बतौर वजीर अपने दरबार में ओहदे दिए, जो 9 रतन यानी 9 हीरे के नाम से बहुत मशहूर हुए। इनमें अबू अल फजल दरबारी राइटर और वजीर था, राजा टोडरमल वजीर खजाना, शेख मुबारक और अब्दुल रहीम दरबारी शायर, महेश दास बीरबल मुशीर और चीफ कमांडर, फ़कीर अजीउद्दीन वजीर मजहबी अमूर, तानसेन दरबारी मौसीकार, राजा मान सिंह सिपा सलार, जबकि मुल्ला दो प्याजा मुशीर और वजीर ख़ास थे। 1560 में अकबर ने दोबारा फौजी कार्रवाइयों का आगाज़ किया और मालवा के हाकिम बाज बहादुर को सारंगपुर की जंग में शिकस्त देकर किले पर कब्जा कर लिया। इस दौरान एक के बाद एक बगावतें भी उठने लगीं, जिनको अकबर कामयाबी से कुचलता रहा। एक दिन दरगाह हज़रत निज़ामुद्दीन से वापसी पर अकबर को कत्ल करने की कोशिश भी की गई, जिसमें वो महफूज रहा। इसके बाद 1572 में अकबर की फौज ने अहमदाबाद और 1573 में गुजरात पर भी कब्जा कर लिया। 1574 में पटना और 1575 में बंगाल और बिहार के कुछ इलाकों पर भी मुगल हुकूमत कायम होगी। शुमाली हिंदुस्तान पर मुगल हुकूमत कायम करने के बाद अकबर ने राजपुताना पर कब्जे के लिए कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। राजस्थान की कुछ रियासतें तो बगैर जंग के ही मुगल सल्तनत में आ गईं, मगर मेवाड़ के राजा उदय सिंह और उसके बाद उसके बेटे महाराणा प्रताप सिंह ने मुगल सल्तनत को मानने और उसकी जागीर बनने से इनकार कर दिया, जिसके बाद 1576 में मशहूर हल्दी घाटी की खौफनाक जंग हुई, जिसमें अकबर के कमांडर मान सिंह ने राणा प्रताप सिंह को शिकस्त देकर पूरे राजस्थान पर अपनी हुकूमत कायम कर दी। इसके बाद कुछ ही अरसे में आहिस्ता आहिस्ता काबुल, कंधार, बलूचिस्तान और फिर कश्मीर भी अकबर के कंट्रोल में आते चले गए। अकबर ने मुगल सल्तनत में बाकायदा एक फौज का इदारा बनाया और मनसबदारीन का निज़ाम कायम किया। उसने अपने वजीर टोडरमल के जरिए एक नया ज़रिए टैक्स का निज़ाम भी कायम किया, जिससे इस शोबे की पैदावार और आमदनी में एक ज़बरदस्त इजाफा हुआ। उसके दौर में तिजारत के शोबे में भी एक हैरत अंगेज इजाफा हुआ। उसने ताजरों की हौसला अफजाई की और उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। चांदी के सिक्कों का भी एक बाकायदा निज़ाम कायम किया गया। अकबर अपनी सल्तनत में मर्जी के कवानीन तो नाफिज कर रहा था, मगर वो दीनी उलमा से बहुत तंग आ चुका था। उसके अहद में जब उलमा ने देखा कि हुक्मरान उनकी बड़ी कदर करता है, तो उन्होंने अपने मर्जी के फैसले शुरू कर दिए और सल्तनत के कामों में मुदाखलत भी करने लगे। उलमा के आपसी फ़िकी और मसले की इख्तलाफात भी अरूज पर थे, जिनमें आए दिन इजाफा भी हो रहा था। अकबर ने फैसला किया कि अंदरूनी फ़िरका वाराना तसादुम और इख्तलाफात में सल्तनत गैर जानिबदार रहेगी, तो उसके 9 रत्नों में से एक शेख मुबारक ने हुक्मनामा भी जारी कर दिया। शहनशाह इस्लाम जलीलुल कदर बादशाह और अमीरुल मोमिनीन एक नहायत इंसाफ पसंद, अक्लमंद और परहेजगार हुक्मरान हैं। इख्तलाफी मसलों पर सिर्फ बादशाह ही कोई राय देंगे, जिसको उलमा की राय पर फोकियत दी जाएगी। इस हुक्म के नतीजे में उलमा अमलन सल्तनत से इलेहदा हो गए, जिससे वो बेख्तियार हो गए। उसके नतीजे में उलमा ने अकबर पर फतवे तक लगाना शुरू कर दिए और सल्तनत में नया हंगामा बपा हो गया। बगावत को कुचलने के लिए अकबर ने उलमा को चुन चुन कर कत्ल करवाया और जेलों में भी डलवाया। अकबर ने दिल्ली के पास फतेहपुर सेकरी में एक इबादत खाना तामीर करवाया, जिसमें तमाम मकातब फ़िक्र के लोग अपने अपने दलाइल देते, मगर आहिस्ता आहिस्ता ये बहस व मुबाहिसे पुरतशद्दुद होने लगे। अकबर ने दूसरे मज़ाहिब के लोगों को भी बुलाना शुरू कर दिया, जिससे एक दूसरे के मज़ाहिब पर गालम गलोच की नौबत तक आ गई। इस दौरान अकबर ने अपने मुशीर अबू अल फजल से पूछा, क्यों ना तमाम मज़ाहिब की मुश्तरका और अच्छी बातों को एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए और एक नया मज़हब बना दिया जाए। अबू अल फजल ने पूछा, क्या लोग इसे मानेंगे? अकबर ने कहा, कोई ज़बरदस्ती थोड़ी है, जिसका जी चाहे माने, जिसका जी चाहे ना माने।
इसका फ़ायदा ये होगा कि आपस के झगड़े कम होंगे और सब धर्मों की अच्छी बातें एक ही मज़हब में मिल जाएंगी। चुनाचे अकबर ने सब मज़ाहिब को मिलाकर एक नया मज़हब दीन इलाही के नाम से बना दिया। अकबर के बहुत से दरबारियों ने ये दरबारी मज़हब कबूल भी कर लिया। इस नए दीन के नतीजे में अकबर ब्राह्मणों के साथ सूरज की पूजा करता, ईसाइयों से बहस मुबाहिसा करता और सलीब के आगे अपने आप को झुका भी देता। बराबरी के असूलों पर अमल पैरा होते हुए यहूदियों की तालीमात का भी एहतराम करता, जबकि हिंदुओं की मुख्तलिफ रस्मों और रवाज पर भी अमल करता और दिवाली का त्यौहार तक मनाता, जिसकी वजह से हिंदू इससे बहुत खुश थे। अकबर एक मजबूत और ताकतवर शख्सियत का हामिल बादशाह था। उसने मुगल सल्तनत को पूरे हिंदुस्तान, अफगानिस्तान तक तोसीह दी और पूरी सल्तनत में एक मरकजी निज़ाम कायम किया। सल्तनत में अमन व अमान कायम किया और मजहबी हम आहंगी को फ़रोग़ दिया, जिसकी वजह से उसे अकबर आज़म कहा जाने लगा। मगर इतनी बड़ी सल्तनत का बादशाह भी अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम में दुखों से ना बच सका। उसके इंतहाई करीबी नौरतनों में शेख मुबारक, टोडरमल, मानसिंह और अबुल फजल का इंतकाल हो गया, जिसका उसे शदीद सदमा पहुंचा। उसके दो बेटे मुराद और दानियाल भी कसरत शराब नोशी की वजह से इंतकाल कर गए। चीतों से शिकार खेलने वाला एक मजबूत इंसान इन गमों और तकलीफ़ों से बीमार पड़ गया और बिलाखिर 49 बरस हुकूमत करने वाला अकबर आज़म 27 अक्टूबर 1605 को इस दुनिया से रुखसत हो गया। उसके बेटे और वारिस सलीम जहांगीर ने आगरा के पास सिकंदरा में एक शानदार मकबरा भी तमीर करवाया। ये थी शहनशाह मुग़ल आज़म की मुख्तसर दास्तान हयात। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। और अगर आप जानना चाहते हैं कि पानीपत की पहली जंग में क्या हुआ तो यहाँ क्लिक करें। यहाँ जानिए कि दौलत उस्मानिया के दूसरे सुल्तान और हान गाजी और उसकी फ़ौज कैसे यूरोप में दाखिल हुई।